are more important: endocrine, CVS, CNS. Okay, अब इसको देखो. Now most part in medicine. So we went pathology in detail because you were having some issues in pathology, but medicine we have discussed in detail. तो मैं जहां पर क्यू लगाऊंगा उसको तुमको भी लगाना है. That's more important. So they ask you amino acid derivative. So catecholamines means epinephrine, dopamine. So these are amino acid derivative. Then thyroid, serotonin, melatonin, nitric oxide. These are hormones which are derivative of amino acid. Small neuropeptide means less than 50 amino acid. Large means more than 50 amino acid. Oxytocin, ADH, ACTH, glucagon, these are small. Insulin, how many amino acid? PTH, 84. Then cortisol, estrogen, testosterone, these are thyroid hormone. And which vitamin can act as hormone? A and D. तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे. All are large neuropeptide except, or which vitamins can act as hormone. Okay, now coming to hormone. Term hormone was given by Ernst Starling. So he coined the term hormone. Coined the term hormone. Now understand this thing. अब इसको देखो. Hormones के receptor होते हैं. So they ask you where we have receptors. Look at the screen and try to understand. So thyroid hormones and vitamins, they have receptor in the nucleus. They have receptor in the nucleus. तो बार बार पूछते हैं थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस पे. Now coming to hormones which have receptor where? In the cytoplasmic reticulum. It is steroid and vitamin D. Now understand this thing. अब यहाँ से एक फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आता है. Again, boring thing. Boring is scoring. What they ask you? So those hormones which have cell surface receptor, they are GPCR. GPCR means G protein coupled receptor. In GPCR, what we have? ये आवाज इको क्यों हो रही है? Then what we have? We have GPGQ. GPGQ means second messenger is phospholipase C or cyclic GMP. Here you will see second messenger is cyclic AMP. Now see what question they ask in exam. TSH, FSH, ACTH, cyclic AMP. Then there is a question on glucagon. Glucagon act by cyclic AMP. Glucagon act by cyclic AMP. V2 receptor, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट पीजी. Vasopressin V2 receptor, cyclic AMP. Now see cyclic GMP, what they ask you? In cyclic GMP, what they ask you? V1 receptor. तो V2 V1 को आपको याद रखना है. Is it clear? V2 and V1. Then hormones that use tyrosine kinase. So from here they ask you a question, that is insulin. Insulin we will use tyrosine kinase. We call this MAP kinase. And growth hormone prolactin, they will use JAK-STAT kinase. They will use JAK-STAT kinase. Okay, now understand this thing. Then what they ask you, we have GPCR, it can be GS, GI, GQ. So this understand, GS will stimulate adenate cyclase. I means inhibition, it will inhibit adenate cyclase. And GQ means phospholipase C. अब आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछते? जस्ट वन क्वेश्चन केम इन एग्जाम, लाइक विच ऑफ दिस will cause inhibition of cyclic AMP? It is GI. Okay, now coming to this INICET question. Tyrosine kinase, second messenger is MAP kinase. एक ये भी क्वेश्चन था. Serine kinase, it is SMATs. Okay, now come to this. I told you in pituitary we have different types of cells. कौन कौन cells थे? Somatotrop, lactotrop.
तो मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ हार्मोन इट इज जीएच। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, ऊपर देखो, मोस्ट अबंडेंट सेल्स, क्या आंसर होगा? सोमैटोट्रॉप्स, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोमैटोट्रॉप्स। तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड एमसीक्यू इज ट्विन हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी, ट्विन हार्मोन ऑफ प्रोलैक्टिन, इट इज ग्रोथ हार्मोन। Growth hormone, we call this twin hormone. Then they ask you kinase will add which group? It will add phosphate group. ओके, हमने पढ़ा था मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी, क्या आंसर था? नॉन फंक्शनिंग। नॉन फंक्शनिंग के बाद क्या होगा? प्रोलैक्टिनोमा। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट कॉमन फंक्शनल, प्रोलैक्टिनोमा। लेकिन ये नॉन फंक्शनल भी कोई ना कोई सेल से निकलेगा, सो इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम गोनाडोट्रोपिक सेल्स। अब इसको समझो एक बार, दिस क्वेश्चन इज ट्रेंडिंग। Trending means understand this thing. Let's say this is pituitary. In pituitary, you are having a tumor. This tumor, understand, this tumor will destroy all the cells. Suppose यहाँ पे tumor है, it will destroy all the cells of pituitary like somatotrop, lactotrop, hemotrop. सारे cells destroy होंगे। तो सारे cells destroy होंगे means which cells? कौन cells कौन से hormones निकलते हैं यहाँ से? Flat pig, FSH, LH, ACTH. So what happens? Suppose if there is a bigger tumor, it will destroy all the cells. FSH, LH, ACTH. तो ACTH भी destroy होगा। ACTH is called hormone of pigmentation. तो इसलिए पेशेंट को पिगमेंटेशन नहीं होगा। समझ आया? तो दे आस्क यू व्हाई देयर इज नो हाइपर पिगमेंटेशन, बिकॉज दिस बिग ट्यूमर, इसको बोलते क्या है? मास इफेक्ट। वी कॉल दिस मास इफेक्ट। ओके, विच टाइप ऑफ हेमियोनोपिया यू विल सी? इट इज सुपीरियर क्वाड्रेनेटोपिया। अब सपोज दे आस्क यू, सपोज आपने पिट्यूटरी पूरी तरीके से निकाल दी, व्हाट वी कॉल दिस? तो पूरी तरीके से निकाल दी, देन लाइफ लॉन्ग वी हैव टू सप्लीमेंट पेशेंट। तो लाइफ लॉन्ग किसका सप्लीमेंट देना पड़ेगा? तीन क्वेश्चन पूछते हैं आंसर देखो। सपोज पिट्यूटरी से क्या निकल रहा है? फ्लैट पिग। फ्लैट पिग इज FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन। राइट? समझ आया? अब देखो, FSH, LH, आर दे नीडेड? आंसर इज यस। बट कैन यू लिव योर लाइफ विदाउट दिस? आंसर इज यस। इससे क्या होगा? बच्चे बच्चे नहीं होंगे, बाकी सब सही होगा। सिंपल। FSH, LH मीन्स they will not give signal to your testis and ovary, but you can live a life. प्रोलैक्टिन नहीं होगा तो मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो बच्चे को क्या है? सेरेलैक खिलाओगे आप, बेबी फूड, आर्टिफिशियल मिल्क पिलाओगे। और क्या होगा? प्रोलैक्टिन नहीं होगा तो थोड़ा तो मैं कम खुश फील होगा, यू विल फील लेस हैप्पी। प्रोलैक्टिन विल आल्सो गिव यू अ बूस्ट इन योर हैप्पीनेस, लेकिन लाइफ चल जाएगी। ग्रोथ हार्मोन, क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं होगा इन योर एज, माई एज, अब तो ग्रोथ चाहिए भी नहीं, तो यहाँ पर भी लाइफ चल जाएगी। तो अगर किसी का पिट्यूटरी निकाल दिया, then lifelong we have to give something about ACTH and TSH. So TSH will give signal to T3, T4. ACTH will give signal to cortisol. तो लाइफ लॉन्ग आपको पेशेंट को क्या खिलाना पड़ेगा? कॉर्टिसोल, T3, T4। है ना क्लियर? अब ऊपर देखो, तीन क्वेश्चन पूछते हैं। ऊपर देखो, फर्स्ट इज फर्स्ट हार्मोन टू सप्लीमेंट, क्या आंसर होगा? कॉर्टिसोल। फर्स्ट टू सप्लीमेंट आफ्टर pituitary rejection, it is cortisol. Then second to supplement T4, because T3 is dangerous. T3 is dangerous. So what we give? T4। समझ आए? तो आपको पेशेंट को लाइफ लॉन्ग क्या देना है? कॉर्टिसोल।
अब कॉर्टिसोल कैसे दोगे, किस फॉर्म में? स्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन। अगर पेशेंट रिच है, you can give injection of growth hormone, you can give injection of FSHLH, prolactin also. But for survival, what two things are needed? Cortisol, T3D4. What is not needed, they ask you, answer is mineralocorticoid. So all these three questions came in exam. Okay, most common site of metastasis in pituitary, this is your posterior pituitary. And posterior pituitary will produce two hormones, that is, it will not produce any hormone, it will release oxytocin, vasopressin. तो वेसोप्रेसिन नहीं निकल पाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? The most common manifestation after a metastasis in pituitary, it is diabetes insipidus. Okay, now look at this. Somatotrophs are most abundant cell. They will produce growth hormone. Lactotroph क्या निकालेंगे? Prolactin. Corticotroph, thyrotroph, gonadotroph, FSH. तो फ्लैट पिक बन गया. तो most abundant cells what we have? Somatotrophs. Most abundant hormone, growth hormone. Clear? Okay, normal prolactin level, it is less than 25. Prolactinoma we diagnose more than 250. मैरो में 200 दिया, हरिसन में 250 है. Is it clear? It is 250, so you have to remember 250. Now understand how we make a diagnose fasting prolactin level, and to see the tumor what we need, MRI. Gadolinium, GD is gadolinium. इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कंट्रास्ट एमआरआई. सिंपल. तो कंट्रास्ट एमआरआई में कौन सा कंट्रास्ट यूज करते हैं? गैडोलिनियम. डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज रथ cyst, craniopharyngioma. Craniopharyngioma will have headache, right? अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं. C for craniopharyngioma, C for children, C for calcification. तो देखो, पिट्यूटरी एडिनोमा सर्जरी से ठीक हो जाता है, लेकिन craniopharyngioma में आपको क्या करना है? सर्जरी के साथ साथ कीमो देनी है, अदरवाइज इट विल रिअकर. इज क्लियर? तो सर्जरी फॉलोड बाय पोस्ट ऑप कीमो. ओके, नाउ कमिंग टू पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी. क्या होता है एपोप्लेक्सी? पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन. तो पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन कैन अकर ड्यू टू मेनी रीजन. फर्स्ट रीजन इज पिट्यूटरी ट्यूमर. जैसे मैंने अभी बताया था, बड़ा ट्यूमर है, उसने पूरी पिट्यूटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया. सेकंड इज इट कुड बी शीहान सिंड्रोम. क्या होता है शीहान सिंड्रोम? Postpartum pituitary necrosis. If you compare this, then there is one more term that is called Simon's disease. Simon's क्या होता है? Non-obstetrical cause of pituitary. तो non-obstetrical cause. Suppose अगर मेरी पिट्यूटरी डिस्ट्रॉय हो जाए या किसी नॉन प्रेग्नेंट लेडी की डिस्ट्रॉय हो जाए, तब उसको क्या बोलते हैं? सिमॉन्स. देन शॉक पेशेंट कैन आल्सो हैव पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी. You can see diabetes mellitus, hypertension, and even sickle cell anemia. Pituitary apoplexy. अब इसको समझो. ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी. तो ग्रोथ हार्मोन विल गिव स्टिमुलस टू योर ग्लूकोज. अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो ग्लूकोज भी कम होगा. सो हाइपरग्लाइसीमिया इज नॉट अ सिम्टम. दिस क्वेश्चन आल्सो इट इज trending, came once in your exam, once in 8 PG. We call this growth hormone insensitivity syndrome और growth hormone receptor anomalies. इसको बोलते हैं लायरॉन dwarfism. अगर आप ग्रोथ हार्मोन दोगे तो शुगर कैसा होगा? ज्यादा होगा. इट इज हाइपरग्लाइसीमिया नॉट हाइपो. इट इज हाइपरग्लाइसीमिया नॉट हाइपो. अब इसको समझो. प्रोलैक्टिन कब कब निकलता है? एक तो जब पेशेंट बेबी डिलीवर करती है, लैक्टेशन. समटाइम इट इज सीन इवन लाइक इन प्रेगनेंसी विदाउट लैक्टेशन, मींस in the trimester some female they have slight level of prolactin is increased when you are in your NREM sleep or when you are happy. जब आप खुश हो, शॉपिंग कर रहे हो,
पेपर पेपर 1 एफएमजी का बढ़िया गया है, तो उसके बाद क्या निकल रहा है? प्रोलैक्टिन. बट देर आर सम कंडीशंस विच आर like systemic disease that can increase prolactin release, like CKD, CLD, epilepsy, hypothyroid. So these patients will also have more prolactin. Am I clear? CKD, expected question. CKD, CLD, epilepsy, hypothyroid. Because देखो वो सब उन्होंने पूछ लिया. डिस्को ड्रग, जो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो, ड्रग्स दैट इंक्रीज प्रोलैक्टिन कौन कौन से होते हैं? डिजिटालिस, सिमेटिडिन, कीटोकोनाजोल. So they have already asked all this. Now they can ask you disease. आपके पास एक पेशेंट है, गैलेक्टोरिया हो रहा है, एमेनोरिया हो रहा है, क्या कराओगे अगला टेस्ट बताओ? आपके पास एक फीमेल आई, सपोज 30 ईयर ओल्ड फीमेल विद गैलेक्टोरिया एंड एमेनोरिया. सबसे पहले, यस वेरी गुड, यूपीटी. सबसे पहले प्रेगनेंसी रूल आउट करना है. हो सकता है प्रेग्नेंट हो. एम आई क्लियर? वंस शी इज नॉट प्रेग्नेंट, देन नेक्स्ट टेस्ट विल बी TSH, T3, T4, मीन्स TFT. इसको बोलते हैं TFT, मीन्स थायराइड फंक्शन टेस्ट. सपोज ये भी नॉर्मल है, देन वी विल टेस्ट चेक फॉर प्रोलैक्टिन लेवल. तो जस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस. ये सीक्वेंस बार बार पूछते हैं एग्जाम में. फर्स्ट इज रूल आउट प्रेगनेंसी. अब इसको देखो. पिट्यूटरी स्टॉक व्हेन यू कंप्रेस दिस विल इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल. Now see, normally growth hormone don't respond to TRH stimulation. अगर आप TRH दोगे, ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट दिस विल इंक्रीज इन एक्रोमेगेली, प्रोलैक्टिनोमा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा. शीहान सिंड्रोम, फर्स्ट टू फॉल ग्रोथ हार्मोन. अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट टू सप्लीमेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड. अब इसके देखो नाम अलग अलग होंगे. शीहान सिंड्रोम दे कैन यूज पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, दे कैन यूज पिट्यूटरी हेमोरेज, पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन, ट्रांसपिनोड रिडक्शन, एम्प्टी सेलर सिंड्रोम. किसी भी रीजन से पिट्यूटरी खत्म हो गई. Oxytocin, it will play a role where in milk ejection and facilitation of labor. AVP and oxytocin, they are stored where? In herring bodies. Okay, then they ask you this AVP. AVP means, what is AVP? Vasopressin का ही नाम होता है. We call this vasopressin, ADH और AVP, same thing. इसको DDAVP भी बोलते हैं. DDAVP. तो sometime you can see AVP, ADH, or you can see DDAVP. DDAVP actually drug form को बोलते हैं, desmopressin को बोलते हैं. राइट? डेस्मोप्रेसिन इज कॉल्ड DDAVP. और AVP किसको बोलते हैं? वेसोप्रेसिन को. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. दे आस्क यू डेस्मोप्रेसिन विल स्टिमुलेट व्हिच एक्वापोरिन? आंसर इज एक्वापोरिन 2. Okay, now see Wolfram syndrome. Wolfram syndrome. Here you can remember a mnemonic, did mode. Did mode means diabetes insipidus, diabetes mellitus, optic atrophy, and deafness. Wolfram syndrome. Lithium, cisplatin, rifampicin. These can cause nephrogenic diabetes insipidus. How you will manage? कैसे ठीक करोगे नेफ्रोजेनिक को? बताओ. In nephrogenic, what we give? Thiazides. In nephrogenic, we give thiazides. Okay, अब इसको देखो समझो. So how we approach a patient to polyuria? Suppose you are having a patient who is having polyuria, right? So first thing is what we should do. We should rule out diabetes mellitus. So suppose आपने रूल आउट कर लिया पेशेंट को शुगर नहीं है. और कब होता है? और कब होता है पॉलीयूरिया? ज्यादा यूरिन कब आएगा? हो सकता है पेशेंट कोई ना कोई डाययूरेटिक ले रहा हो. पेशेंट कोई ना कोई डाययूरेटिक ले रहा हो. इज इट क्लियर? और पॉसिबिलिटीज, पेशेंट इज टेकिंग some, I can say,
सप्लीमेंट आता है क्रिएटिन, किसने लिया है क्रिएटिन? क्या होता है क्रिएटिन लेने के बाद? तो यूरिन ज्यादा आता है, यू विल सी पॉलीयूरिया। और आई कैन से सपोज डाययूरेटिक, सो वी शुड रूल आउट दिस थिंग। या फिर पेशेंट ने रात को शराब ज्यादा पी है, अल्कोहल से भी सेम होता है, इसलिए now understand this thing. You will check urine osmolality. If it is lesser than plasma EDH, if it is more, then we call this nephrogenic diabetes insipidus. If it is less, then we see this bright spot. देखो ये आपके एग्जाम में तो आया नहीं है, बट नीट पीजी में ट्रेंडिंग है. The bright spot is present where? In primary polydipsia. This bright spot, it is present in primary polydipsia. This is absent where? Then it is central diabetes insipidus. Done. Okay, now moving to SIADH and diabetes insipidus. So they want you to compare few parameters. Urine sodium, urine osmolality, plasma sodium, plasma osmolality. बताओ, याद है इंक्रीज डिक्रीज? तो SIADH में क्या होगा? यूरिन सोडियम, यूरिन osmolality, plasma sodium, plasma osmolality. Because there is thick urine will have more solute. अब ये सारे एरो को उल्टा कर दो बस. Now tell me, हाइपोनेट्रीमिया किसमें? Hyponatremia, SIADH. So in SIDH patient, they ask you, patient will develop euvolemic hyponatremia. So SIDH will cause hyponatremia. अब इसको समझो एक बार, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है. क्वेश्चन लाइक कैंसर पेशेंट कैन हैव SIDH. SIDH में क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया. लेकिन एम्फीसीमा में नहीं होगा. है मैं क्या? एम्फाइसीमा में क्या होगा? एम्फाइसीमा में बुल्ला बनेंगे, और ये बुल्ले जब फटते हैं, देन पेशेंट विल डेवलप न्यूमोथोरैक्स. तो मेरे कहने का क्या मतलब, देखो SIDH यू विल सी इन लंग कैंसर पेशेंट, नॉट इन एम्फाइसेमा. 3% NS is used to treat SIDH. तो SIDH में और क्या देते हैं? We use 3% NS, then we use Vaptan. एक टैबलेट आती है टोलवास नाम से, टोलवैप्टन. Then there is an old drug called demeclocycline. Demeclocycline. So these are used in treatment of SIDH. SIDH. ओके, याद आ रहा है? गो फाइंड रेस्ट, मेक गुड स्टडीज. मेक गुड स्टडीज. तो ग्लोमेरुलोसा, fasciculata reticularis. M is mineralocorticoid. G is glucocorticoid. This is sex steroid. Mineralocorticoid means aldosterone. Glucocorticoid means cortisol. And sex steroid means your testosterone, estrogen. These are sex steroid. Medulla will produce epinephrine, norepinephrine, and dopamine. Epinephrine, norepinephrine, and dopamine. Done? ओके, अब इसको देखो. कुशिंग सिंड्रोम से कई सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. तो दे आस्क यू व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉज. Most common causes exogenous, or you can say iatrogenic. Exogenous means पेशेंट बाहर से लेता है. कौन सा पेशेंट लेता है स्टेरॉइड बाहर से? कौन लेता है स्टेरॉइड बाहर से ज्यादातर? अरे हर जिम वाले नहीं लेते. ऑटो इम्यून डिसीज. मतलब देखो, जिम में ऑप्शनल है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसीज में मजबूरी है, उसको तो लेना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो दोस्त विद ऑटो इम्यून डिसीज, ब्रोंकियल अस्थमा, तो ऑटो इम्यून डिसीज. देन दे आस्क यू एंडोजेनस, इट कुड बी ड्यू टू एडिनल ट्यूमर और पिट्यूटरी ट्यूमर.
This pituitary tumor, this question came in your exam. It's most common cause in elderly. और अगर पिट्यूटरी का कॉज है, देन व्हाट वी कॉल दिस, तब इसको कुशिंग डिसीज बोलते हैं, राइट? देन इट कैन बी एक्टोपिक. Ectopic means where, which cancer? Small cell lung cancer. Small cell lung cancer. Okay, now understand. Again, this was a doubt of few of you. Investigation of choice. Prep letter में कुछ और दिया है. आंसर यही है. रिसन में ये दिया है. Is it clear? Dexamethasone suppression test, and it is low dose dexa suppression test. That is investigation of choice. Low dose dexa suppression test. This is the investigation of choice. अब देखो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, like suppose they are asking you what is the radiological investigation of choice to diagnose an ectopic cause of Cushing. ectopic cause क्या है? लंग कैंसर. लंग कैंसर को लिए क्या कराना पड़ेगा आपको? सीटी स्कैन. ओके, कमिंग टू कोन सिंड्रोम. व्हाट इज कोन सिंड्रोम? दिस इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. तो पेशेंट विल डेवलप हाइपरनेट्रीमिया, hypertension without edema. Why no edema? Because atria will produce ANF, and ANF will cause natriuresis. So ANF क्या करेगा? यूरिन से निकाल देगा वाटर को. तो पेशेंट विल डेवलप हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. कौन सिंड्रोम? ओके, कौन सिंड्रोम का कॉज क्या होगा? इट इज एड्रिनल एडिनोमा और एड्रिनल हाइपरप्लेशिया. एड्रिनल एडिनोमा और हाइपरप्लेशिया. The exact opposite of this will be Addison disease. Addison disease, most common cause, it will be autoimmune adenitis. It can be due to TB, HIV. अब इसको देखो, इन एडिसन डिसीज, ऊपर देखो मैंने क्या बताया था. एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? सॉल्ट मीन्स सोडियम एंड वाटर रिटेंशन in exchange of potassium and H positive ion loss. This is normal job of aldosterone. This is physiological function of aldosterone. अब देखो in Addison disease what you will find there is low aldosterone. एल्डोस्टेरोन कम होगा. ऊपर देखो, तो सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन कम होगा. सॉल्ट और वाटर रिटेंशन इज लेस, इट मीन्स क्या होगा? लेस सॉल्ट मीन्स हाइपोनेट्रीमिया. हाइपोनेट्रीमिया की वजह से क्या होगा पेशेंट को? हाइपोटेंशन. राइट? लेस सोडियम एंड वाटर टेंशन and more loss of potassium and H positive ion. समझ? more or less loss? Less loss of potassium means क्या होगा? Hyperkalemia and metabolic acidosis. Metabolic acidosis. This is your Addison disease. Addison disease. Okay, now coming to pheochromocytoma, some new MCQ. क्या सिम्टम होते हैं? PHD. PHD लिखो, palpitation, headache, diaphoresis. So see, hypertension is a symptom but not in triad. Triad क्या है? Palpitation, headache, diaphoresis. तो hypertension symptom तो है but not in a triad. Okay, अब इसको देखो. Sometime you will see pheochromocytoma will also have PTHRP. PTHRP मैंने इससे पहले आपको कहाँ बताया था? In squamous cell lung cancer. तो pheochromocytoma भी PTHRP निकालेगा. PTHRP means parathyroid hormone related peptide. तो more PTH means more calcium. तो patient will have hypercalcemia. ग्लूकोज की वजह से क्या होगा? मोर ग्लूकोज मीन्स इट कैन कॉज पॉलीयूरिया. इसलिए डायबिटीज में क्या होता है? पॉलीयूरिया.
cafe elot spots, they are seen in NF1, and NF1 is pheochromocytoma associated syndrome. Pheochromocytoma is considered malignant if metastasized to lymph node. Now coming to extra adrenal, क्या बोलते हैं इसको? What we call paraganglioma. देखो नॉर्मली फियोक्रोमोसाइटोमा नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन डोपामिन कुछ भी निकाल सकता है, लेकिन एक्सटर्नल निकालेगा सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन. दिस वाज द लेटेस्ट आईएनआईसीटी क्वेश्चन. देखो ऊपर देखो. नॉर्मल फियोक्रोमोसाइटोमा, अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट कॉमन कैटाकोलामिन दैट इज रिलीजेस नॉरएपिनेफ्रिन, but pheochromocytoma in meant to be syndrome it will produce epinephrine. Normally norepinephrine is mainly produced, mainly released. देखो तो क्वेश्चन कैसे है ऊपर देखो. मोस्ट कॉमन हार्मोन रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन. मोस्ट कॉमन हार्मोन रिलीज फ्रॉम meant to be associated pheochromocytoma epinephrine. Okay. Biopsy and FNAC we avoid. Why? Because it is vascular, there's chance of bleeding, there's chance of dispersion of disease. Highest sensitivity and specificity, it is seen in 24 hours fractionated metanephritis. Investigation of choice for localization of tumor associated with pheochromocytoma. अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया. जो हमने पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी प्लाज्मा मेटानेफ्रिन्स. अब पूछ रहा है आपसे क्या? ट्यूमर विच आर एसोसिएटेड विद pheochromocytoma. It means what they're asking you. What they're asking you. Man to A, man to B. तो अगर आपको और दूसरे ट्यूमर देखने हैं तो क्या कराना पड़ेगा? पेट स्कैन. इन pheochromocytoma सपोज, अब समझो इसको. In case of benign tumor, what we do? We do surgery. If it is malignant, then surgery is contraindicated. What we do? We give triple therapy combination. हम तीन दवाई चलाते हैं, डाकार्बाजिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, विंक्रिस्टिन. इसको बोलते हैं ऑर्बुक प्रोटोकॉल. We call this ऑर्बुक प्रोटोकॉल. So it is like chemotherapy. Just write it down. It is nothing. It's a chemotherapy for pheochromocytoma. Pheochromocytoma. Am I clear? Okay. So MIBG scan is used in treatment as well as diagnosis of pheochromocytoma. So MIBG is used both in treatment as well as diagnosis. Okay. So all men are not the same. So we have men 1, men 2A, men 2B. तो men 1 में क्या था? 3P. थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है. तुम्हारे बुकलेट में भी ऊपर नीचे हो रहा है. तो 3P मीन्स पिट्यूटरी पैराथायरॉयड पैंक्रियास. मैन 2A क्या था? मैन 2A 1M मीन्स MTC 2P. 2P क्या थी? पैराथायरॉयड एंड फियोक्रोमोसाइटोमा. मैन 2B MTC म्यूकोसल न्यूरोमा मेगाकोलोन. P से क्या है? फियोक्रोमोसाइटोमा. तो मोस्ट कॉमन हियर इन M2 it is MTC. मैन 4. मैन 4 क्या था? मैन 4 Man 4, pituitary, parathyroid, adrenal, renal, reproductive. So nobody will ask you, but this could be expected. This could be expected. That is CDKN1B mutation. Clear? Okay. Most common site of gastrinoma, it is duodenum. Definitive treatment for insulinoma, it is surgery. Most common cutaneous manifestation in men 1 syndrome, it is angiofibroma. गैस्ट्रिनोमा के लिए एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सीक्रेटेन स्टडी. सीक्रेटेन स्टडी क्या होता है? सीक्रेटेन, सीक्रेटेन इज नेचुरल एंटी एसिड. ओके. ये क्या है? ढोल. So D is diabetes. तो पेशेंट विल हैव डायबिटीज और प्री डायबिटीज में शुगर बढ़ा हुआ होगा. हाइपरटेंशन, ओबेसिटी. एल से क्या था? कौन सा लिपिड? LDL.
एलडीएल कितने से ज्यादा, एचडीएल कितने से ज्यादा, लेस देन 40 इन केस ऑफ मेल्स, लेस देन 50 इन केस ऑफ फीमेल्स। दूसरा लिपिड क्या था, ट्राइग्लिसराइड, दिस इज more than 150। So if you see any 3 or more symptom, इसको बोलते हैं सिंड्रोम एक्स, सिंड्रोम एक्स, और व्हाट वी कॉल दिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। क्लियर? So you can see this is one dole, this is another dole। अब इसको देखो सिंड्रोम एक्स में, सिंड्रोम एक्स में अगर पेशेंट की सांस फूलने लगे, क्या बोलते हैं उसको, ओएसए, इसको बोलते हैं सिंड्रोम जेड। वी कॉल दिस सिंड्रोम जेड, सिंड्रोम जेड। डन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओके, नाउ लुक एट दिस, म्यूकर माइकोसिस, एम्फिसेमेटस कोलिसिस्टाइटिस, माइग्रेन रोडाइटिस एक्सटर्ना, किससे होता है ये, सूडोमोनास। So these are those infection where 90% of the time patient is diabetic. These are infection which are unique in diabetes. I'll tell you example, देखो ये तो जनरली ईएनटी के पास जाता है, तो दिस पेशेंट आई हैव नॉट सीन, बट आई हैव सीन टिल नाउ, कोविड के टाइम पे लोगों को एकदम से कॉम्प्लिकेशन हो गई, दैट वाज म्यूकर। आई हैव सीन 10 पेशेंट विथ म्यूकर माइकोसिस, ऑल 10 वेयर डायबिटिक। 10 के 10 को क्या था, शुगर की, डायबिटीज की हिस्ट्री थी। Similarly, when you see in ENT, the Pseudomonas infection is also seen mostly in diabetic. Okay, then they ask you DK। DK से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं? फर्स्ट इज सिम्टम। सो सिम्टम देखो, पेशेंट को कुछ भी हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से लेके पाल्पिटेशन तक, एनीथिंग, बट दे विल गिव यू हिंट इन एग्जाम, patient is having rapid and shallow breathing, we call this small breathing। सेकंड हिंट विल बी, पेशेंट के मुंह से खुशबू आ रही होगी, लेकिन आपको सूंघना नहीं है वो, रोटी ऑर्डर, दिस इज बिकॉज ऑफ एसीटोन, रोटी स्मेल इज बिकॉज ऑफ एसीटोन। और क्या पूछते हैं, दे आस्क यू, वी कैन डू यूरिन टेस्ट, तो इन यूरिन विच किटन बॉडीज वी चेक, यूरिन में कौन सी कितनी किटन बॉडीज होती हैं, एसीटोन, एसीटो एसीटेट, तो यूरिन में जो होती है दैट इज एसिटो एसीटेट, और प्लाज्मा में जो होती है इट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। तो दिस इज द बेस्ट टेस्ट, इट इज द बेस्ट टेस्ट। क्लियर? तो डीके का डायग्नोस करने के लिए दे आस्क यू अप्रोच। तो व्हाट इज द अप्रोच, आपके पास एक पेशेंट है डीके का, हाउ यू विल अप्रोच एंड ट्रीट, पहला टेस्ट बताओ क्या कराओगे, सबसे पहला टेस्ट क्या कराओगे, फर्स्ट वी नीड टू मेक डी, के एंड ए, वी नीड टू कंफर्म दिस, तीनों चीजें चाहिए। तो डी के लिए मीन्स डायबिटीज होनी चाहिए पेशेंट को, तो डायबिटीज चेक करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल डू अ रैंडम ब्लड शुगर, पेशेंट का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आएगा, तो जनरली इट इज more than 250। कितना हो सकता है, 300, 400, 500, 600, कितना भी हो सकता है। के फॉर कीटोन बॉडीज, उसके लिए क्या कराओगे, यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट, फिर क्या कराओगे। So this was the question which they ask in exam, like a 50-year-old patient is coming to you, so what is the next test, answer is ABG। तो आपको डायग्नोस करने में, ट्रीट करने से पहले एबीजी भी कराना है। नाउ वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, वी नीड ऑल थ्री, वी नीड ऑल थ्री थिंग्स। ऐसा हो सकता है, सपोज, बताओ मुझे, तुम बताओ, पेशेंट का शुगर आ रहा है 85, कीटन बॉडीज पॉजिटिव है, और एसिडोसिस भी है, इज इट पॉसिबल। मेरे पास अभी पेशेंट आया था ऐसा, पेशेंट का शुगर कितना है 84, शुगर इज नॉर्मल, कीटन बॉडीज, कीटन बॉडीज हैं, और पेशेंट को एसिडोसिस भी है, इज इट पॉसिबल, बताओ कब। हाइपोग्लाइसीमिया कीटन बॉडीज में बनेगी ना, कीटन बॉडीज कब बनती है, जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है।
हिंट देता हूँ, हिंट। पेशेंट इज टेकिंग सम ओ एच ए। विच ओ एच ए? विच? हाँ, मेटफॉर्मिन से लैक्टिक एसिड होता है। एक तो मेटफॉर्मिन ले रहा है, दूसरा ग्लीफ्लोजेंस। क्या कराते हैं? यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस। तो जो टैबलेट आती है कानाग्लिफ्लोजन, डापाग्लिफ्लोजन, यू विल सी उनके साथ जनरली मेटफॉर्मिन होता है। एंड सम पीपल दे आर टेकिंग, बिकॉज हाइपोग्लिसेमिया कम कराती हैं वो, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ दिस मेडिकेशन, तो दैट कैन कॉज दिस थिंग। मेटफॉर्मिन से क्या होता है? एसिडोसिस। और कानाग्लिफ्लोजन, डापाग्लिफ्लोजन से यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस। है ना क्लियर? सो हाउ यू विल मैनेज? सबसे पहले क्या दोगे? फ्लूइड। देन इंसुलिन। विच इंसुलिन? रेगुलर। उसके बाद डेक्स्ट्रो से पहले केसीएल। ऑल्टरनेट एनएस में क्या देते हैं? केसीएल। केसीएल के बाद डेक्स्ट्रोस। डेक्स्ट्रोस इज एक्टिंग एज न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप। और मैंने क्या बताया था? सोडा बाइकार्ब ऑप्शनल है। वो कब देना है? जब पेशेंट सपोज एक दो दिन बाद भी उसका एबीजी नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो सोडा बाइकार्ब इज ऑप्शनल। ओके, व्हाट इज द डोजिंग ऑफ इंसुलिन दैट वी गिव इनिशियली? 0.1 यूनिट पर केजी आईवी स्टैट। विच इंसुलिन दिस इज? रेगुलर इंसुलिन। तो अगर पेशेंट का वेट 80 केजी है तो कितना दोगे? 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स। है मैं क्लियर? तो सपोज अब आपको पेशेंट हो सकता है अनकॉन्शियस हो, तो वहां पर वेइंग मशीन नहीं ढूंढनी है, अंदाजा लगाना है। अंदाजा मीन्स जैसा रैंडम गैस। फॉर एग्जाम्पल सपोज रैंडम गैस, सपोज अगर मुझे इनको देना है तो आई विल गिव हिम 7 यूनिट। कितना वेट है? 75, तो 7 यूनिट। तो एक अंदाज से सही हो गया। इसको देना है 4 यूनिट, 5 यूनिट। सो दिस इज हाउ वी, कितना वेट है? 55 यूनिट्स। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। समझ आया नहीं आया? तो जस्ट डोंट बी इन हरी कि पेशेंट का वेट आप एग्जैक्ट कर रहे हो, एक दो यूनिट ऊपर नीचे होगा कोई बात नहीं। समझ आया नहीं आया? अब सपोज इनको देना है तो 6 यूनिट, 60 किलो वेट, 6 यूनिट। तो दैट रफली वी कैन गेट एन आइडिया। है ना क्लियर? कम दे दो लेकिन ज्यादा मत देना। है ना क्लियर? तो नाउ कमिंग टू कॉम्प्लिकेशन। तो देर कैन बी रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। रेटिनोपैथी, अंडरस्टैंड, they ask you cause of visual handicapness in proliferative stage. It is vitreal hemorrhage. In non-proliferative stage, it is CME. क्या है CME? सिस्टोइड मैकुलर एडिमा। नेफ्रोपैथी अभी आएगा, पढ़ लेंगे हम वहाँ पर। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन इट इज DSPN। DSPN मीन्स डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी। डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आउट ऑफ दिस विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्टली इरिवर्सिबल? आंसर इज PVD। अगर पेशेंट को गैंग्रीन हो गया तो वो ठीक नहीं होगा। है ना क्लियर? तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज इज जनरली इरिवर्सिबल। So these are skin changes. We call this diabetic dermopathy. Diabetic dermopathy. Diabetic dermopathy. शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कौन कौन सी थी? लेस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलाइसिन। तो इनके नाम में क्या आ रहा है? एस। इंटरमीडिएट एक्टिंग NPH, न्यूट्रल प्रोटामिन हैगिड्रोन, एंड रेगुलर इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जिन, डेटेमर, डेग्लूडेक। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब मुझे बताओ,
लॉन्गेस्ट कौन सी इनमें से? लॉन्गेस्ट मीन्स दिस विल वर्क फॉर 48 आवर्स, तो इसको हम प्रैक्टिस में यूज नहीं करते. ग्लार्जिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीकलेस इंसुलिन. पीकलेस इंसुलिन एंड ओनली इंसुलिन विच इज आईवी. तो इमरजेंसी में कौन सी देंगे? डीके होगा या कॉमा होगा, विच यूज रेगुलर इंसुलिन. क्या हम रेगुलर को सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं? यस और नो? यस. तो इट इज ऑल्सो सबक्यूटेनियसली वी कैन यूज. सस्ती भी आती है, अफोर्डेबल भी है. ओके, अब इसको देखो. इसको आज ही घर पे जाके पढ़ना है. दिस इज 5 स्टार टॉपिक. तो ये हमने नोट्स में पढ़ा था. इट विल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओ एच, स्पेशली जो अभी ट्रेंडिंग है, वो क्या चल रहा है? ओजेम्पिक मुंजारो. वो तो मैं अभी बता दूंगा. दैट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, सो डेफिनेटली एनबीए में वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा. लास्ट ईयर आपके एग्जाम में टिर्जापेटाइड पूछ लिया था. टिर्जापेटाइडिस मुंजारो. हाइपोग्लाइसेमिया. हाइपोग्लाइसेमिया अंडरस्टैंड दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन विपल स्ट्राइड. क्या होता है विपल स्ट्राइड? तो पेशेंट विल हैव लो शुगर. तो पेशेंट विल हैव सिम्टम्स ऑफ लो शुगर. क्या होते हैं सिम्टम्स? सबसे पहला सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम, पेट में आवाज आएगी. एक क्रैम्प से होते हैं, हंगर क्रैम्प. राइट, सिम्टम्स ऑफ लो शुगर. एंड वेन एवर यू गिव ग्लूकोज, you will see resolution of symptoms. Resolution of symptoms on giving glucose. We call this Whipple stride. So Whipple stride, it is seen in a tumor. That tumor is called as insulinoma. Insulinoma. Okay, now see, hyperparathyroidism. It can be primary, it can be secondary. So primary is due to parathyroid hyperplasia, and secondary you will see where? In CKD patient. अब देखो ध्यान से, ये आपने ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ा होगा, समझो इसको. इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में क्या होगा? पीटीएच विल इंक्रीज. pTH will increase. In primary, you will see alkaline phosphatase. This will increase. Here you will see it can be normal or increase. तो मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर क्या है यहाँ पर? ध्यान से देखो. द मेन डिफरेंस फीचर इज यू विल सी हियर इंक्रीज कैल्शियम, हियर यू विल सी डिक्रीज कैल्शियम. So how we can differentiate primary and secondary based on calcium? Salt and pepper skull, rugged jersey spine, brown tumor. These are features of increased PTH. So they ask you salt and pepper skull, brown tumor, osteitis. These are seen due to hyperparathyroidism. Okay, now coming to hypoparathyroidism means there is a decreased PTH. PTH कम होगा तो calcium कम होगा. Then you can see phosphate will increase, and because of decreased calcium, you will see Chvostek and Trossy sign. क्या होता है Chvostek sign? When you tap on cheeks, patient will have blink. You will see patient keep on blinking. And Trossy sign means अगर आप patient के हाथ को जोर से दबा दोगे, then you can see this called carpopedal spasm. Carpopedal spasm. This is hypoparathyroidism. हाइपोपैराथायरिज्म हमने अभी पढ़ा था एक कंडीशन में, वेयर डी syndrome. डी syndrome will also have hypoparathyroidism. Okay, now understand. Autoimmune thyroiditis will increase risk of other autoimmune condition. So any autoimmune condition will increase risk of other autoimmune. Now मुझे बताओ, tell me the name of autoimmune thyroiditis. Hashimoto's. What is the link? दोनों में ऐसा क्या लिंक है? This is CTLA4. कुछ याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा था CTLA4? Type 1 diabetes. CTLA4 gene is linked with autoimmune condition. ओके, अब देखो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयड, टायर्डनेस एंड वीकनेस. पेशेंट थका थका रहेगा, लेटा रहेगा बेड पे. अगर मैं इसको हाइपर का पूछूं तो हाइपर का एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी. ओके बताओ, लो T3, नॉर्मल TSH, नॉर्मल T4.
क्या है ये? व्हाट इज द डायग्नोसिस? सिक यूथायरॉयड सिंड्रोम। सिक यूथायरॉयड सिंड्रोम, ये हमने पढ़े थे बहुत अच्छे से। सिक यूथायरॉयड सिंड्रोम। एप्लेशिया क्यूटिस कंजेनाइटा एंड कोनल एट्रीसिया, these are side effect of carbimazole and methimazole. Pregnancy and breastfeeding, these are contraindication of radioiodine therapy. Drug of choice for thyroid storm, PTO. अब इसको देखो, goiter दो तरीके का होता है, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक। सो नॉन टॉक्सिक यू विल नॉट डू सर्जरी। कंप्लीट रिलीफ, अब सपोज ऊपर देखो, आपके पास एक पेशेंट है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो व्हाट इज द डोज दैट वी स्टार्ट? क्या डोज में स्टार्ट करते हैं? क्या डोज बताया था मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म में? 1 to 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे। BBF, BBF मीन्स बिफोर ब्रेकफास्ट। This dose we use in healthy adult, in healthy adult, but in old people और पेशेंट विथ कार्डियोवास्कुलर डिसीज, देखो नॉर्मल लोगों में तो क्या है, आप वेट के हिसाब से स्टार्ट करते हो, लेकिन बूढ़े लोगों में कैसे करोगे? वी स्टार्ट विथ 25 माइक्रोग्राम ऑलवेज। लो डोज से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ाना है। अब सपोज आपने स्टार्ट कर दी, पेशेंट को थकान हो रही है, 15 दिन बाद बोलेगा वो मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, तो उसको बोलो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 3 to 6 months। एम आई क्लियर? इट विल टेक। जोड J4, जोड J4, ज्यादा, ज्यादा मीन्स हाइपर। और इसका उल्टा क्या था? वोल्स चेकऑफ। वोल्स चेकऑफ मीन्स it will decrease thyroid hormone. Okay, then they ask you this question, what is surest sign of Graves? देखो अगर किसी पेशेंट को आंख में चेंजेस है, then it is definitely a grave disease. Thyroid dermopathy, less than 5% पेशेंट, क्या बोलते हैं इसको? प्रीटिबियल मिक्सेडिमा, प्रीटिबियल मिक्सेडिमा। एंड थायराइड एक्रोपैची, एक्रोपैची मीन्स नेल क्लबिंग, इट इज सीन इन लेस देन 5% पेशेंट। ये क्वेश्चन आता नीट पेज में, ऊपर देखो, नेल क्लबिंग इज सीन इन 20% ऑफ पेशेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज सीन इन लेस देन 1% ऑफ पेशेंट। Most common symptom of thyrotoxicosis, or I can say hyperthyroidism, it is hyperactivity. In thyrotoxicosis crisis, mortality is 30%. Okay, this is very, very important drug. Amiodarone. Amiodarone can cause both hypo and hyper, but not silent thyroiditis. Okay, they ask you multinodular goiter is more common in women, and main difference will be functional autonomy. Okay, now thyroid cancer याद है? क्या demonic बताया था? Please feel my lean abs. Papillary, follicular, medullary, lymphoma, anaplastic. Please feel my lean abs means most common to least common, least dangerous to most dangerous. Okay, understand. Some people they develop thyroid hormone resistance. This is genetic resistance. Like I'll tell you, कितना maximum T4 आप देते हो? Yes, somebody said 200. So 200 microgram per day if you are giving, and there is no improvement, no relief. Then what we call this? We call this refractory, refractory hypothyroidism. तो ऐसा कब होता है? Because some people they developed autosomal dominant disease. So thyroid hormone resistance is autosomal dominant. Thyroglobulin levels, these are normal in thyrotoxicosis factitia. Dequervin is due to viral infection. Most common cause of congenital it is thyroid dysgenesis. Okay, target level of TSH in first trimester less than 2.5. Hypotonic saline is avoided in myxedema, comma. It is avoided myxedema, comma.
Okay, now coming to sugar value, how we diagnose diabetes? So how we diagnose? Fasting values are more than how much? 126. Postprandial more than how much? HbA1c more than 6.5. HbA1c is in percentage. So this is diabetes. देखो ध्यान से ऊपर. Suppose if you see this value in this range, then you can see this value where 5.6 to 6.4. This is your pre-diabetes. Less than 100, less than 140, less than 5.6. This is your normal sugar. Normal sugar. So ये values are very very important. Generally पेपर में क्या पूछते हैं? प्री डायबिटीज को पूछते हैं. Fulminant डायबिटीज किस में था? कॉक्साकी बी वायरस. एंड दिस वाज एन एपिडेमिक इन जापान. इंसुलिन के साथ क्या बढ़ जाएगा? पीएच. पीएच विल इंक्रीज. ओके देन दे आस्क यू कंजेनिटल ओबेसिटी. सो प्राइडर विलाई में होती है, लॉरेंस मून बिडल में होती है, कार्सिनोइड में नहीं होती. तो दे आस्क यू व्हाट आर द सिंड्रोम्स. तो इसको याद रख लो. प्राइडर विलाई, बार्डेड बिडल, कारपेंटर कोहेन. रिमेंबर दिस फोर. These are genetic condition with congenital obesity. Okay, now see. Two hormones which regulate each other, leptin and ghrelin. क्या difference होता है? Leptin will decrease your appetite. Ghrelin will increase your appetite. Leptin will decrease your appetite. Leptin is, it is adipocyte derived hormone, right? Now understand there is important transcription factors that is converting adipocytes to adipocyte, that is PPARY. Adiponectin levels, these are reduced in obesity. Leptin mutation can also cause hypogonadotropic hypogonadism. A very very important physiology question. See this. भूख किससे कम होती है, किससे लगती है? So leptin, MSH and insulin, this will decrease your appetite. This will decrease. And what is increasing? Neuropeptide Y, a gouty related peptide, MCH melanocorticoid hormone, orexins and ghrelin. जो लोग गांजा पीते हैं उनको भूख लगती है बिकॉज दिस कैनाबिस इज हैविंग ओरेक्सोजेनिक एक्शन. उसमें क्या होता है? ओरेक्सन. इज इट क्लियर? So they ask you question, all will increase appetite except. All will decrease appetite except. So remember this leptin is very very important. ये neuropeptide Y भी एक बार आया हुआ है. Okay, now see. Insulin levels are increased in obesity. Now they ask you question on BMI. ऊपर देखो. BMI means if your BMI is less than 18.5, it is underweight. So what is normal? Up to 25 is normal. Clear? 25 is normal. 25 to 30 is overweight. तो इस क्लास में जो आधे लोग बैठे हैं वो इस बीमारी में ओवरवेट. 25, 30 to 35 is called class 1 obesity. 35 to 40 class 2. More than 40 को बोलते हैं सुपर ओबेसिटी. क्लास 3 is called as सुपर ओबेसिटी और एक्सट्रीम ओबेसिटी. अब देखो क्वेश्चन क्या पूछते हैं. व्हाट इज बरियाट्रिक सर्जरी? सर्जरी का क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से. किस मोटे आदमी की आपको सर्जरी करनी है? ओके लेट्स सी. नॉर्मल में तो कुछ नहीं करना है. अंडरवेट वाले को खाना खिलाना है. कुछ आप देखोगे कुछ लोग लाइक दे वांट टू इंक्रीज देयर वेट, तो वो सप्लीमेंट लेते हैं, प्रोटीन और एक मास गेनर आता है. तो कुछ भी खाओ. तो मोमोज खा लो, 1 महीने मोटे हो जाओ. ईट एनीथिंग, एनीथिंग विच इज रिच इन कैलोरीज. नाउ ओवरवेट ट्रीटमेंट इज सेम.
exercise. So in these two condition, I can say the treatment is lifestyle changes. Means आपको एक्सरसाइज करनी है और थोड़ा सा कम कैलोरीज लेनी है, सिंपल। है मैं क्लियर? 40 के ऊपर आपको क्या करना है? दिस इज द इंडिकेशन ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी। तो बेरियाट्रिक सर्जरी वी इंडिकेट दैट इज क्लास 3 ओबेसिटी। इसलिए अब क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं, क्लास 2 में कब आप बेरियाट्रिक सर्जरी करोगे? तो अगर क्लास 2 के साथ पेशेंट की सांस फूल रही है देन यू विल डू बेरियाट्रिक सर्जरी। अदरवाइज सांस नहीं फूल रही है देन इट विल बी लाइफस्टाइल चेंजेस। समझ आया क्वेश्चन? देखो ध्यान से, क्लास 2 का पेशेंट है, ज्यादा मोटा नहीं है लेकिन सांस फूल रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ही इज हैविंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। In that case, we should do. But if it is not affecting his breathing, then we will do lifestyle modification. Okay, now coming to drugs. Phentermine, lorcaserin, orlistat के ब्रैकेट में लिखो lipase inhibitor. Orlistat is lipase inhibitor. Bupropion, also we use in smoking cessation. Naltrexone, opioid antagonist. This is your tirzepatide. Tirzepatide is Monjaro. This is your liraglutide, and this is your Ozempic. Ozempic and oral version is called Rybelsus. This is nowadays trending. आजकल काफी ट्रेंड में. So these are your anti-obesity drugs which are WHO approved. Anti-obesity drug which are WHO approved. इसके अलावा कोई और WHO approved नहीं है. Is it clear? Like metformin भी है but not WHO approved. Similarly, there was a drug Rimonabant that is no longer used. Am I clear? So Rybelsus is oral. Ozempic is subcutaneous. Monjaro is subcutaneous. Oral version is oral version of semaglutide is Rybelsus. टाइप 1 पेशेंट के अंदर फॉलोअप कब करोगे? आफ्टर 5 years. टाइप 2 में एज सुन एज पॉसिबल. नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस विच एक्वापोरिन? एक्वापोरिन 2. टाइप 1 डायबिटीज CTLA4. मोडी का जीन HNF1 अल्फा. क्रोमोसोम 4 मोडी. मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी, नॉन फंक्शनल, और इफ इट इज नॉट इन द ऑप्शन देन प्रोलैक्टिनोमा. डीके में डेथ कैसे होती है? सेरेब्रल एडीमा. Hypertension is due to which hormone? ACTH. These are all PYQs. Most common neuropathy, DSPN. Distal symmetric polyneuropathy. मिनरलोकॉर्टिकॉइड के एग्जांपल बताओ. एल्डोस्टेरोन. Which layer? Zona, glomerulosa. Glucose fever you will see in which condition? In Addison disease. Second most common symptom of prolactinoma. Galactoria के बाद most common is galactoria. Second most is amenorrhea. Smoking is also a risk factor for obesity. Answer is true. Short term indicator of sugar. Fructosamine. Long term. Which OHA cause lactic acidosis? Fenformin. If it is not given, then metformin. Best drug for obese patient in diabetes. It is semaglutide, liraglutide, tirzepatide. अब नहीं पूछेंगे metformin because now they are far better than metformin in terms of obesity. Whipple-stride, insulinoma. कार्सिनोइड से क्या निकलता है?
Most reliable test, single test is TSH. Wolff-Chaikoff effect is due to iodine excess, and it will cause hypothyroidism. So excess iodine at once will cause hypothyroidism. Hypothyroidism. Okay, now coming to angina. Angina most common cause. बताओ. GERD. Most dangerous cause. MI. Most dangerous cause is MI. Levine sign. तो patient will compress the chest with dominant hand. तो इसको लिखो यहाँ पर. Patient compress chest with dominant hand. We call this Levine sign. एंजाइना के लिए एक क्वेश्चनेयर होता है. कौन सा क्वेश्चनेयर? रोज क्वेश्चनेयर. तो विच क्वेश्चनेयर वी यूज? वी यूज रोज क्वेश्चनेयर. रोज क्वेश्चनेयर. More in female, stress, emotion, tobacco use, amphetamines, cocaine, cold climate, episodic symptom, differential diagnosis will be panic attack. Panic attack को हम और क्या बोलते हैं? Anxiety neurosis. Markers are normal. याद रखना, markers are normal in any angina. Gold standard test, it will be ECG is never gold standard in cardiology. क्या करते हैं? Intracoronary acetylcholine injection. We will give intracoronary acetylcholine injection, and then you will see vasospasm. ट्रीटमेंट के लिए अटैक में क्या दोगे? In attack we give nitrate, and in PX is prophylaxis. Which CCB? Non-DHP. Non-DHP means verapamil diltiazem. So these are all the MCQs from here to here. These are all the MCQs for Prinzmetal angina. एक और जो मिस हो गया यहाँ पे, पेशेंट की हिस्ट्री होगी कोल्ड क्लाइमेट की वजह से रेनॉट की. तो देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ रेनॉट. History of Raynaud. Then understand I told you NYHA. NYHA is for heart disease. This is dyspnea in heart disease. Shortness of breath in heart disease, what we use? NYHA. Shortness of breath, I can say in lung disease. What we use? इसको बोलते हैं, इसके ऊपर लिखो MMRC. Modified Medical Research Council. MMRC scale. So क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. देखो, अगर हार्ट डिसीज दी है तो MMRC आंसर होगा ही नहीं. समझ आया? अगर हार्ट डिसीज दी है दैट विल बी NYHA. तो देखो ध्यान से. Suppose a person is having cardiac disease, so no limitation, slight limitation, marked symptom at rest. This is NYHA. Coming to MMRC, grade 1. Now see, 1 is look like hill. 1 कैसा लग रहा है? हिल के जैसा. तो dyspnea on walking uphill. Grade 1. Grade 0 is normal. 2. 2 means comparison. 2 means comparison. Suppose both are 50-year-old. One is walking slower than another. 3. 100 meter. So 100 में कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3. Dyspnea on walking 100 meter. 4 means floor. इतना dyspnea है कि घर पे पड़ा हुआ है, घर से बाहर ही नहीं जा पा रहा है. Too dyspneic to leave the house. This is MMRC. Okay, now see, Gemini rhythm. कहाँ मिलती है Gemini rhythm? Digoxin. Digoxin toxicity. Irregular pulse. Regularly irregular. Fixed second degree AV block. Gemini rhythm. Irregularly irregular AF. Variable second degree AV block and VPC. रेडियो femoral delay. थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है.
Aortic arch disorders, Takayasu's coarctation of aorta. These are the conditions where you will find radiofemoral delay. Okay, what is APC? APD क्या था? Apex pulse deficit. Apex pulse deficit. कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? You will listen to patient S1 and simultaneously you will palpate his pulse. Audible S1 and palpable pulse rate के बीच में जनरली कोई गैप नहीं होता. So audible S1 minus palpable pulse rate. So normal APD कितना होगा? 0. अब ऊपर देखो ध्यान से. सपोज मैंने तुम्हारे स्टेथोस्कोप से सुना, अगर मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, then हार्ट बीट इज कमिंग 70, palpate करने पे आ रही है 55. So if this difference is more than 10 beats, 10 beats per minute, then it is seen in AF. AF. और अगर डिफरेंस 10 बीट्स से कम का है, इट इज VPC. तो ये लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया था. एपेक्स पल्स डेफिसिट ऑफ 12, इट इज AF. AF. वाटर हैमर पल्स, कोरिगैन पल्स, वेयर वी सी कोरिगैन पल्स? AR. AR, एओर्टिक रिगर्गिटेशन. ओके, JVP से क्वेश्चन पूछते हैं. ए वेव क्यों होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. सी वेव. तो दिस इज अपने आप चल रहा है. देखो, ए वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. सी वेव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ. तो यहाँ पे किसकी बात चलेगी? इसमें JVP में ऑलवेज टॉक अबाउट राइट साइड ऑफ हार्ट. सो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. वी इज वेना कावा फिलिंग. एक्स इज एट्रियल रिलैक्सेशन. वाई इज एम्प्टिंग ऑफ RA इंटू RV. राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में एम्प्टिंग ऑफ RA इंटू RV. Okay, then they ask you the sometime image-based question, hepatojugular reflex. Very, very important, pulsus paradoxus. क्या था पल्सस पैराडॉक्सस? वो तो कुछ स्मॉल था, JVP तो. Fall in systolic blood pressure more than 10. So pulsus paradoxus is fall in SBP more than 10 mmHg during inspiration. So it is classically seen where? In severe acute asthma, cardiac tamponade, tension pneumothorax, SVC syndrome. Very, very important. या तो सीधे वन लाइनर आएगा या क्लिनिकल केस में जरूर आएगा ये लाइन. सिमिलरली व्हाट वी हैव स्मॉल साइन. क्या था स्मॉल साइन? JVP failed to fall. JVP failed to fall. बंद हो गई क्या रिकॉर्डिंग?
अटक गया है। जेवीपी फेल टू फॉल, लिखो उसको, जेवीपी फेल टू फॉल को बुलाना किसी को, दिलीप जी को। जेवीपी फेल टू फॉल और इट पैराडॉक्सिकली इंक्रीज। जेवीपी फेल टू फॉल। ओके, जहां पर लिखा है आपने, चल नहीं रहा है, कर लो तब तक, लिखो तब तक, तुम लिखो। तो स्मॉल साइन जहां लिखा है, इन दीज कंडीशन यू विल ऑल्सो सी विच टाइप ऑफ ए वेव, लार्ज और जाइंट ए वेव। तो जहां पर कुछ स्मॉल साइन लिखा है, इन दीज कंडीशंस वी विल ऑल्सो सी जाइंट ए वेव्स, यू विल सी जाइंट ए वेव्स, जाइंट ए वेव्स। क्लियर? तो जनरली एग्जाम में तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो उस पर क्यों लगा लो, क्रोनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ओके, नाउ कमिंग टू हार्ट साउंड। हार्ट साउंड देखो नीचे लिखा होगा, विच आर हाई पिच हार्ट साउंड, S1, S2। तो हाउ वी लिसन दिस साउंड, डायफ्राम। लो पिच के लिए क्या चाहिए आपको, बेल। तो देखो एक फोटो बनी हुई है हार्ट साउंड की, तो दिस फोटो एग्जैक्ट दे आस्क इन एग्जाम, तो एक निमोनिक लिखो, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन, ऑल पीपल एंजॉय टाइम मैगजीन। ऑल मीन्स एओर्टिक वॉल, ऑल मीन्स एओर्टिक वॉल, पीपल मीन्स पल्मोनरी वॉल, enjoy means ups area, then time is tricuspid wall, and M is mitral wall. All people enjoy time magazine. अब इनकी लोकेशन देखो क्या होगी लोकेशन, यू कैन सी एओर्टिक पल्मोनरी कहाँ पे होंगे, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। क्लियर? तो पेपर में फोटो आता है, यू नीड टू अरेंज दिस सिंपल, कि कौन सा वॉल कहाँ पर है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इन एग्जाम, राइट? विच हर्ट साउंड्स आर पैथोलॉजिकल, so write down S3 is mostly pathological, S3 is mostly pathological, and S4 is always pathological, S4 is always pathological, S4 is always pathological, S3 S4 they are seen in heart failure। तो जनरली S3 S4 कहाँ मिलती है, हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर। क्या बोलते हैं उसमें इसको, गैलप रिदम। इन हार्ट फेलियर वी कॉल दम गैलप रिदम, इन हार्ट फेलियर वी कॉल दम गैलप रिदम। ओके, नाउ सी S1 S2 ejection click opening snap, these are हाई पिच, और हाई पिच के लिए क्या चाहिए, S3 S4 tumor plop sound, these are low pitch, and what you need, bell। ओके, मुझे बताओ, ट्यूमर प्लॉप साउंड इज सीन वेयर, मिक्सोमा। ओपनिंग स्नैप कहाँ मिलती है, इजेक्शन क्लिक कहाँ मिलती है। now see this S3 S4 S1 S2 are normal, S3 S4 they are seen in heart failure। बताओ इजेक्शन क्लिक, aortic stenosis, opening snap, mitral stenosis। clear? Okay, now they ask you wide split S2 paradoxical split, just remember this ASD, बार बार ये पूछते हैं, ASD will have fixed wide split,
बाकी सब में क्या है, वेरिएबल. AS2 will have fixed wide split S2. तो इजेक्शन क्लिक AS, ओपनिंग स्नैप MS, पेरिकार्डियल नॉक और शडर, chronic constructive pericarditis. And tumor plop sound you will see where, in myxoma. Tumor plop sound you will see where, in myxoma. All murmurs will decrease on Valsalva standing amyelinated except HOCM and MVP. Similarly, here also same thing, HOCM and MVP. Then they ask you some named murmur, Caricum murmur, rheumatic fever, Austin Flint AR, Graham Still PR. So these are three questions which they ask on named murmurs. These are some named murmurs. Okay, echo color Doppler. आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, we have two types of thing, transthoracic and transesophageal. So most common used method, the most common is transthoracic. बट ट्रांस इसोफेजियल आपको कब करना है, जब कोई एलए क्लॉट हो. एक ही क्वेश्चन है, एलए थ्रोम्बस और एलए क्लॉट. इन दैट केस वी डू ट्रांस इसोफेजियल. इन दैट केस वी डू ट्रांस इसोफेजियल. फ्लॉपी वाल्व सिंड्रोम, we also call this as Barlow syndrome, and patient will develop mitral valve prolapse. Most common tumor of heart, आंसर होगा metastasis. Most common benign tumor of heart, most common malignant tumor, angiosarcoma. Electrical alternance in echo, pulsus paradoxus, money bag appearance, Ewart sign. These are seen in cardiac tamponade. Broadband sign, square root sign. It is seen in chronic constructive pericarditis. Chronic constructive pericarditis. Am I clear? Okay, then they ask you cardiomyopathies. In cardiomyopathy, what they ask? So मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा जो एग्जाम में पूछते हैं, because basic thing we have discussed already. So these are the different types of cardiomyopathy which they ask routinely in exam. और DCMP के बारे में क्या जानते हो? दारू के अलावा मोस्ट कॉमन टाइप, देन मोस्ट कॉमन कॉज इज दारू, D for दारू. It can be due to titin mutation. Last year NEET PG question, selenium deficiency. It can be postpartum, और postpartum वाली ठीक हो जाती है, और कौन सी ठीक नहीं होती, वो होती है डॉक्सोरोबिसिन वाली. So doxorubicin, and there is one more drug, trastuzumab, which is more dangerous, doxorubicin. So understand this thing, patient का ejection fraction generally 10 to 20% के बीच में होगा बस. और you will see patient will have, कौन सी पल्स मिलती है यहाँ पर, Wills type of pulse, डिक्रोटिकस, डिक्रोटिक पल्स. DCMP में डिक्रोटिक पल्स. एक्सरे में क्या दिखेगा, कार्डियो में गैली, कार्डियो में गैली तो कैसा दिखेगा हार्ट, यू विल सी हार्ट बड़ा बड़ा दिखेगा, ऑल चैम्बर्स आर डायलेटेड. ओके, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. इधर से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, एमिलोइडोसिस. मोस्ट कॉमन कॉज विल बी एमिलोइडोसिस, एंड वी आल्सो कॉल दिस इनफिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी. HOCM, बीटा मायोसिन हेवी चेन, बीटा मायोसिन हेवी चेन. क्लियर, बीटा मायोसिन हेवी चेन जीन म्यूटेशन. और ब्रेक में गाना सुन लेना, बलिए रे, कौन सी मूवी थी वो, भूल गया मैं नाम, जर्सी. तो दिस इज जर्सी, मीन्स सडन क्रिकेटर.
Football player, sudden death, right? So understand this thing. This HOCM, what they ask you, why these people die, and what is two questions they ask you in exam. What is most common symptom? So most common symptom is exercise intolerance. तो पेशेंट जैसे ही एक्सरसाइज करेगा उसको सिम्टम होंगे. एंड सेकंड थिंग व्हाट दे आस्क यू इज व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ? इट इज वीटी, सस्टेन्ड वीटी. तो सस्टेन्ड वीटी मीन्स पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है और उससे डेथ होती है. इज क्लियर? सस्टेन्ड वीटी. ताकत सुबो, इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन, हिस्ट्री ऑफ सम इमोशनल लॉस, इमोशनल ब्रेकडाउन. इज क्लियर? इमोशनल ब्रेकडाउन. So what we call this? Broken heart syndrome. Broken heart syndrome. Is it clear? But for this, you need a severe stressor. Means छोटे मोटे ब्रेकअप में नहीं होगा ये. Severe emotional failure. Then remember, left ventricle will look like a jar. This jar is called octopus jar heart. Octopus jar heart. Octopus jar heart. Okay, rheumatic fever, what they ask you? They ask you name of antibody, ASLO, anti-streptolysin O, name of bacteria, GUPS. Phenomena is called as molecular mimicry. This molecular mimicry means patient will have M protein. M protein is structured is similar to body's protein. Then what they ask you on a rheumatic fever, you will see like patient will have most common feature. Most common will be migratory polyarthritis. Migratory polyarthritis. And least common will be chorea. Which chorea? Sydenham's chorea. Patient will develop vegetations, and these vegetations will be along line of closure. Then they ask you some path question here, like which type of MS you will see. We call this fish mouth MS. There is bread and butter pericarditis. Bread and butter pericarditis. And you will see some modified macrophage. क्या बोलते हैं उसको? NH cells. NH cells. Modified macrophage. These are formed. Then sometime in left atrium you will find a plaque called McCallum patch or McCallum plague. This is about your rheumatic fever. It is about your rheumatic fever. अब देखो हाइपरटेंशन से क्वेश्चन जनरली ड्रग्स पे ही आता है. तो नॉर्मल हाइपरटेंशन दे डोंट आस्क यू मच क्वेश्चन. व्हाट दे आस्क यू, सपोज हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो व्हाट वी सी पेशेंट विल हैव ऑक्सीपिटल हेडेक, सर में दर्द होगा. देन यू विल नोटिस फटीग. देयर विल बी लाउड S1. और अगर आप ईसीजी कराओगे उसमें क्या दिखेगा आपको? फीचर्स ऑफ LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. Which diet we use? Dash full form. Dietary approach to stop hypertension. Then they ask you hypertension rule of halves. Rule of halves. और क्या पूछते हैं? Tracking phenomena. Tracking phenomena. So these are the MCQs which they ask on hypertension. Now let's talk about antihypertensive drugs. So what are antihypertensive drugs which we use? Suppose hypertension है.
इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, इन malignant hypertension, in pregnancy, then the drug of choice will be labetalol. Labetalol. Then labetalol. Then understand? Suppose if patient uric acid is increased, क्या दोगे तब? Losartan. Losartan is having uricosuric action. अगर पेशेंट को सपोज हाइपरटेंशन के साथ you will see patient is having, I can say, stroke, then we can use labetalol. अगर स्टेबल हो गया then we can use nicardipine. Nicardipine. Then understand, in hypertension what they ask you, if it is like eclampsia, sorry, pre-eclampsia. तो pre-eclampsia में क्या देंगे? labetalol ही देंगे. Or they can ask you hypertension in pregnancy, which it can be hypertension induced pregnancy और pregnancy induced hypertension, दोनों में क्या दोगे आप? labetalol. ये क्रोमोसाइटोमा तो पता है सबको, क्या देते हैं? फिनॉक्सीबेंजामिन. फिनॉक्सीबेंजामिन. ओके, अब ये क्वेश्चन एक बार आया था, देखो. labetalol से ठीक नहीं हो रहा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्रोलाजिन. और इससे भी नहीं हुआ तो एंटीजी ड्रिप, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप. एंटीजी की ड्रिप चालू करोगे. ठीक है, एंटीजी ड्रिप्स. है मैं क्लियर? एंटीजी ड्रिप. ओके, नाउ कम टू द एंटीरिथमिक ड्रग्स. क्लास 1 2 3 4. तो आपको याद रखना है सम ब्लॉक पोटेशियम चैनल डैम. सम मीन्स क्लास 1 इज सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 2 is beta blocker, except one beta blocker. Which one? Sotalol. Sotalol. Class 3 is potassium channel. Class 4 is CCB. And this other class is miscellaneous class. We can also call this miscellaneous class or class 5. So here we have DAM, digoxin, atropine, adenosine, MGSF. तो इस miscellaneous class की एक खूबसूरती है, देखो इधर. All are IV. All are IV drugs. All are rare drugs. All are DOC. So they are used in a specific condition only. डिजॉक्सिन को कब यूज करते हैं बताओ? अगर पेशेंट को एएफ के साथ हार्ट फेलियर है. एट्रोपिन कब दोगे? ब्राडियार्डिमियास में, इन एवी ब्लॉक. और कहीं यूज करते हैं एट्रोपिन? ओपी पॉइजनिंग. और आंखों को डायलेट करने के लिए क्या देते हैं? सपोज सपोज इफ यू वांट टू इवेल्युएट आइस, आपको एग्जामिनेशन करना है, फंडस चेक करना है, तो पहले क्या देखोगे? यू विल डायलेट दिस विद एट्रोपिन, राइट? वेयर एल्स वी यूज एट्रोपिन? बताओ और कहाँ यूज करो? एट्रोपिन से सिक्रेशन कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे? सिक्रेशन कम हो जाएंगे. सपोज दोस हु आर हैविंग hyperlacrimation, in that case we can use adenosine. It is used where? कहीं और यूज करते हैं एडिनोसिन को? सोचो, मैंने बताया था ये. anywhere else we use this? PSBD is tachyarrhythmia, और लेन PSBD arrhythmia में एक ही जगह यूज करते हैं. और कहीं? हमने पढ़ा था स्ट्रेस टेस्ट, याद आ रहा है? स्ट्रेस टेस्ट में क्या क्या यूज करते हैं? डोब्यूटामिन, डाईपाइराडामोल, एडिनोसिन.
MgSO4, it is used in TDP. TDP is टॉर्साइडस de pontis. बट इसके अलावा भी MgSO4 को कई जगह यूज करते हैं, बताओ। एक्लैम्पशिया, ओके एक्सेप्टेड। वेयर एल्स? हाइपोमैग्नीसीमिया, व्हेन योर मैग्नीशियम इज लो। और बताओ। हाइपरकैल्सीमिया, बताओ और बताओ, दो जगह और यूज करते हैं। तुमने लिखा है, मैंने पढ़ाया है। ब्रोंकियल अस्थमा, इट इज यूज्ड इन सीवियर अस्थमा। घर पर जाके देखना, लिखा है हमने। एंड दिस इज यूज्ड इन मेनी पॉइजनिंग एज अ लवाश। तो MgSO4 we can use in lavash form for many poisoning. MgSO4. Am I clear? So this is about your antiarrhythmic drugs. Am I clear? Okay, तो आज के लिए इतना ही। रेस्ट पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो। कल कंटिन्यू करेंगे। टुमारो विल स्टार्ट एट 3 o'clock, 3 to 6, 3 घंटे में हो जाएगा। ज़्यादा है? हाँ, हो जाएगा। तो पैथोलॉजी तुमने बिल्कुल बाउंस हो रही थी ना, इसलिए उसमें थोड़ा डिटेल गए थे। तो ये तो पढ़ रखा है, तो हो जाएगा ये। ओके देन, सी यू टुमारो।